Hi guys, welcome to lecture number 5 for our Indian Growth and Development course. The agenda for this particular session would be to discuss the golden era of growth. So जो हम लोग discuss कर रहे थे regarding what really happened, what we want to get into the details of what really happened during the period 2003 to 8. Why was growth so high? What were the reasons which were causing the growth to be at such a high level? जो हमने multiple tables भी देखी थी. So we would like to go ahead and get into the depth of what were the primary reasons for, the growth that we saw during the 2003 to 8 period. Golden era of growth. So 2003 to 2008. So let me just show you the table once again, which we saw last time also. Yes. So if you look at this particular real GDP growth table, if we see GDP at factor cost, it was about 8.7%. If we see GDP at the market price, it was 8.8%. So if you see all the other growth rates, that was the highest, right? अगर आप एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस देखो, अगर आप इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस देखो, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज का परफॉर्मेंस देखो, इट वाज एट इट्स ऑल टाइम पीक ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड. एंड इस पीरियड में हमारे पास जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, दैट वाज आल्सो मैनेजेबल एंड द इन्फ्लेशन वाज आल्सो अंडर कंट्रोल. थिंग्स वर in this particular manner. If we see the domestic saving rate, gross domestic saving as a percentage of GDP, that was around 33.3%. If we see the total investment, that was also around 33.7%. So they were huge numbers. So what is it that was causing, the growth to be so high during this period? This is something that we want to get into. So let's see that. So if we go ahead and see what was the growth rate around this period. So overall GDP growth rate was about 8.7% per year during this entire period. And this was among the highest growth rate that India had seen. And if we look at the size of the economy at that point of time, in 2008, the GDP size was about $1.2 trillion. तो हमने 2017 में भी हमारा जीडीपी साइज देखा था, दैट वाज अराउंड 2.1%. तो 2008 में दिस वाज द साइज. ठीक है. पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करें तो दैट वाज आल्सो क्वाइट हाई एंड इट वाज if you see the growth of industry and services, primarily driven because of those particular sectors में जो growth, service sector में and industry sector में. Agriculture में relative to what growth we saw in earlier times, the growth was high, but compared to industry and services, it was not that much. ठीक है. So what were the primary policies that were driving this growth? So सबसे पहले तो इसके पहले बहुत सारे structural changes हुए थे which were leading the growth to be this high. So इंडस्ट्रियल रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी, लिबरलाइजेशन हुआ था, वो सब के बेनिफिट्स हम लोग इस पीरियड में आके फील कर रहे थे. तो उसके अलावा कुछ कुछ जो फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी. सो इंडस्ट्रियल restructuring was happening. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद उसके अलावा इस पीरियड में वी ऑल्सो सॉ रिडक्शन इन रियल इंटरेस्ट रेट. और अगर इंटरेस्ट रेट लो रहता है तो इसकी वजह से क्या होता है, बिजनेस बोरोइंग्स या इन्वेस्टमेंट के परस्पेक्टिव से इन्वेस्टमेंट्स गो हाई, बोरोइंग बिकेम इजियर ड्यूरिंग दिस पीरियड. सो इट इनकरेजेस business borrowing. During this period of time, fiscal consolidation was also happening. Fiscal consolidation. What would that mean? That means government borrowings were at the lower levels.
lower government borrowings. Because हमारा सेविंग रेट इतना हाई था, हमारा इन्वेस्टमेंट रेट इतना हाई था, the government borrowings were at a smaller amount, lower government borrowings. Our monetary policy was working very nicely, improved monetary policy. And, we also see that inflation rate was very low at that point of time. If you implement your monetary policy properly, it leads to lower amount of inflation. Led to lower inflation. And the macroeconomy was stable. Macroeconomic stability पे थे हम लोग उस वक्त पे, ठीक है. उसके अलावा ये सब तो डोमेस्टिक रीजंस हो गए. उसके अलावा अगर हम ग्लोबली बात करें तो ग्लोबल कंडीशंस भी काफी फेवरेबल थी उस वक्त पे. फेवरेबल ग्लोबल कंडीशंस वर देयर. द इंटायर वर्ल्ड की ऑन एन एवरेज जो ग्रोथ रेट थी दैट वाज हाई. सो फेवरेबल ग्लोबल कंडीशंस वर देयर. और काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड थी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड. सो जिसकी वजह से वी हैड बूस्टेड exports. We were also seeing FDI inflows. Foreign direct investment inflows increased during this period. And there was global liquidity boom. So money was flowing at all different countries in the world during this particular period of time because काफी boom situation चल रही थी. इसकी वजह से there were a lot of investments that were coming into India as well. So that was one reason. So domestically also we were doing well. Global conditions were also favorable to growth at that point of time. And during this period, we were also following fiscal consolidation. तो government की borrowings काफी low थी. Lower government borrowings. And इसकी वजह से क्या हो रहा था? More and more funds was coming from the private sector investment. Investment was very high during this period of time. And if we look at the gross tax to GDP ratio, this was also high at that point of time. इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो काफी हाई है ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो गवर्नमेंट रेवेन्यू अगर हाई है तो सरकार को बहुत ज्यादा बोरोइंग की नीड नहीं होगी, ठीक है. एंड जो सब्सिडीज थी दे वर आल्सो अंडर कंट्रोल. सब्सिडीज वर अंडर कंट्रोल. ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से domestic conditions were well. Government was also strictly following the fiscal policy in a proper manner, and global conditions were also in favor of us, ठीक है. And household saving rates were also going up. And यहाँ जहाँ हम लोग इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन वाज आल्सो अंडर कंट्रोल. जैसे अगर हम लोग WPI की बात करें ड्यूरिंग दिस पीरियड इट वाज अबाउट 5.5%. If we talk about CPI, this was also stable, but it was also getting impacted by the global trends. ये तो बात हो गई एक. अब दूसरी एक और बात, एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो हैं, जो कि काफी एक सोर्स बन सकते हैं हाई इन्फ्लेशन का. तो जो अलग अलग क्रॉप्स थी उसकी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी रिवाइज होता रहता है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो ग्रोथ हो रही थी दैट वाज लेसर देन द WPI. तो जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन थी, मतलब उसी के बेसिस पे डिसाइड कहीं ना कहीं होता है कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस को कितना हमें मॉडिफाई करना है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को. तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो ग्रोथ थी दैट वाज लेसर देन दी WPI. तो इसकी वजह से क्या हुआ? व्हेन दिस इज लो, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि आप रूरल इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पा रहे हो. रूरल इन्फ्लेशन वाज अंडर कंट्रोल.
अगर आपके मिनिमम सपोर्ट प्राइस की ग्रोथ ज्यादा है इन्फ्लेशन से, तो इसका मतलब है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लोग जो अपना प्रोडक्ट, जो क्रॉप सेल करेंगे, वो एक हाई प्राइस पे सेल करेंगे, जो कि हर फूड आइटम की कॉस्ट में इंक्लूड होगा, जिसकी वजह से प्राइसेस राइज होंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन राइज हो जाएगी। तो अगर एमएसपी ग्रोथ हाई होती है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की ग्रोथ हाई होती है, तो दैट समटाइम्स कॉजेज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, एमएसपी वर ग्रोइंग बट नॉट at the rate that WPI was growing. So the rural inflation was also under control. And we were getting lot of inflows of foreign capital as well, but it was well managed. And apart from that, if we talk about the infrastructure side, infrastructure development या infrastructure में जो investment थी, infrastructure investment, that was about, that increased by 1% of GDP. और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो दैट इज गुड फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज, लाइक से रोड आर गेटिंग डेवलप्ड, या हाईवेज आर गेटिंग डेवलप्ड, या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आप बढ़िया कर रहे हो, तो वो हर इंडस्ट्री को बेनिफिट करता है, ठीक है। सो देयर वाज अ 1% राइज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। एंड ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, ये प्राइवेट सेक्टर से भी आ सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर से भी आ सकता है। तो almost 50% of this investment came from the private sector. So private infrastructure investment also increased. So road investment was increasing. And if we talk about the railway investment, there was no major expansion over there. Road investments were going up. So there was a significant increase in the number of highways that we had. तो ये सब कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ये सब का कल्मिनेटेड इम्पैक्ट इज व्हाट वी वर सीइंग ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक पॉइंट आया जहां पे वी स्टार्टेड सीइंग द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। सो जो ग्लोबल फैक्टर्स, ग्लोबल डिमांड हाई थी, we saw that vanished, and धीरे धीरे the entire world economies, major advanced economies were facing a crisis like situation। तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी हुआ। तो अगर आप जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करो, so we started facing deceleration post this global financial crisis। So this happened in 2008। So we saw economic deceleration in this period of 2012 to 2018. And this particular reading that we are going through, this was written in 2019। So यहीं तक के हमारे पास facts and figures available हैं in this particular reading। So if we look at GDP growth rate, so that became in 2012 to 2018, we saw that GDP went down to 6.9% per year, as compared to 8.7% in the period of 2003 to 2008। हमने एक पूरा डेकेड देखा था काफी हाई ग्रोथ रेट का, उसके बाद पहली बार हम लोग डिसेलरेशन फेस कर रहे थे, पहली बार स्लो डाउन फेस कर रहे थे, ठीक है। अब इसके क्या क्या कॉजेस थे, व्हाट वर द कॉजेस ऑफ दिस। पहले बात तो जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी थी, देयर वाज अ ओवर शूटिंग इन दैट, that we did not stop implementing the policies that we were following earlier, even after the crisis. So overshooting of fiscal and monetary stimulus. Post 2008 crisis. And we also had inflationary pressures. And if we see the current account deficit, it widened, and it became close to 3% and 2% in the upcoming periods. So widened beyond comfort levels.
right? So these were some of the reasons. So let's say if we look at the tables, if I show you the tables, so first of all, if you see these tables, we saw lower amount of growth rate. So growth rate fell here and growth rate fell here, growth rate fell here and here as well. So this 6.9% that we are claiming, this is this one. And then if you see the current account deficit, it became minus 3%, which is deficit. And then this was about 2%. So current account deficit भी काफी high हम लोग face कर रहे थे. ठीक है. उसके अलावा, if we look at inflation, the inflation number shot up during this period. And then it came under control later on, but we were facing inflation which was higher than the previous periods. So that is one thing. Apart from that, if you look at this, so this was the minimum support price that we were talking about. Just a moment, let me, if you look at this table, so this is minimum support price and wholesale price index. तो अगर अलग अलग क्रॉप्स की बात करो, राइस, wheat, ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द, so these are all pulses and these are main wheat and rice, main crops that people consume all over the country. तो अगर आप यहाँ पे देखो, तो जो हम लोग बोल रहे थे यहाँ पे, जैसे गैप की बात करें, सो ये जो गैप है, दिस पर्टिकुलर गैप, लेट्स से फॉर राइस इफ वी सी, अगर हम लोग 2008 तक की बात करें यहाँ से ऑलमोस्ट, सो वी सी दैट देयर इज अ गैप. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि जो हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, if that is moving at a slower pace as compared to the WPI, so then there is a negative gap. Negative gap helps in reducing inflation. If there is a positive gap, that will help in increasing inflation. So if you see in all these cases, you see positive numbers. If you will see negative numbers here during this period, and then you'll start seeing almost positive numbers here. So similar, यहाँ पे negative numbers हैं and then positive numbers here. Negative numbers here and then you'll see positive numbers here. Again, sometimes it becomes negative, sometimes positive. तो majorly जो 2003 से 8 का period था, we had negative gaps and then we started having positive gaps, which means that the MSP was growing at a faster pace as compared to the इन्फ्लेशन. सो दैट मीन्स जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को एक बूस्ट मिलेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी. ठीक है. सो दिस वाज अनदर वन. उसके अलावा जैसे अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, इफ यू लुक एट दिस टेबल, तो इफ वी सी फर्स्ट ऑफ ऑल as a percentage of GDP, what was the infrastructure development around? So if you see total, let's say 5%, 5%, 6.3%, 6.2%. And then in the upcoming periods, it started going down comparatively. And if you look at the proportion, we see here that, during this period, it was almost as a percentage of GDP, almost similar contributions were there. So जैसे पहले अगर 2000 से लेके 2006 की बात करें, तो मेजरली इट केम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंड देन दिस प्रपोर्शन काइंड ऑफ इंक्रीज्ड इन the private sector side. Private sector was investing, the ratio was improving, it was more. And if you look at this table, this side, you see the proportion going like this, almost 50-50%. So this is what we were seeing. Okay. And these numbers on an overall basis, they were relatively falling down as compared to the previous times. Okay. So this is what we were seeing. एंड अगर और भी की फैक्टर्स की बात करी जाए, तो अगर आप ये देखोगे कि जो हमारे पास 2004 से यहाँ पे लेट्स से 2008 का डेटा है, तो these dotted lines are interest payments, these are profits and these are net profits. So इस पीरियड में जो नेट प्रॉफिट्स थे, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, कॉर्पोरेट्स के नेट प्रॉफिट्स, they were going up, and then after the slowdown, they started going down, or relatively comparatively lesser than the previous numbers. ठीक है. And ये जो इंटरेस्ट पेमेंट वाला पार्ट है,
ये हमें ये बताता है कि कॉर्पोरेट्स कितना अपना सेल्स का प्रपोर्शन एज इंटरेस्ट पेमेंट्स दे रहे थे. सो दीज इंटरेस्ट पेमेंट्स वर continuously growing up because इस पीरियड में उन्होंने काफी बोरोइंग की थी. अब वो सारी बोरोइंग्स के जो इंटरेस्ट पेमेंट्स थे दैट वाज आल्सो getting deducted as a percentage of the sales. That is another thing. उसके अलावा if you look at interest payment as a proportion of profit, so these numbers went up in this particular period. So what does that mean? कि आपने पहले borrowing की हुई है, अब उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स अब आपको देनी है, तो ये भी काफी सारे प्रॉफिट्स को ईट अप कर रहे थे जो उन्होंने स्टार्टिंग में बोरोइंग की थी. ठीक है. And these were some of the changes in exchange rate as well, real effective exchange rates. So during this period it was lesser and then it started going up more on a broad basis. This is what we are saying. And then this is the balance of payment table. So this was the period, let's say till here. If we look at the current account balance, it was under manageable levels here, and then it started going up slightly here, and then again it became manageable. As a percentage of GDP आपका current account balance है. In terms of US billion dollars, this was your current account balance. So during this time, at least it became very negative, minus 78 billion, minus 88 US billion dollars. All these numbers were there. Okay. And if we look at this portfolio investment inflows, what does that mean? कि foreign inflow outflow उसका जो gap है वो क्या है? So net inflows कितने रहे हैं? ठीक है. तो शुरू में they started going up, and then during this period it was relatively higher as compared to other times. So a lot of money was coming in as well. Okay. So we want to get into the technicalities and details regarding what was really happening during the slowdown period. So inflationary pressures were there. उसके लिए हमने MSP का ग्राफ देखा. CAD was widening. उसके लिए भी हमने figures देखे around 3%, और in the upcoming period it was about 2%. तो inflationary pressures की अगर बात करें तो food inflation काफी high थी, मतलब relative to MSP, MSPs were going at a higher rate as compared to inflation, which meant there is a cost push inflation which is coming into picture. So if MSP growth is higher than WPI inflation, that means there is a cost push inflation. So CPI was about 6.4% in this period, and WPI was about 2.4%. In the 2012 to 2018 period. Okay. And we also started seeing higher interest rate. जिसकी वजह से it slowed investment. कॉर्पोरेट बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गई जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो गई. ठीक है. एंड अगर फिस्कल पॉलिसीज ड्यूरिंग दिस टाइम 2012 to 18 की बात करें, सो 2012 to 2014 देयर वर लॉट ऑफ टैक्स कट्स मतलब लोगों के लिए टैक्स कट्स, प्लस सब्सिडीज बढ़ गई, सब्सिडी एक्सपेंशन. और ये दोनों ही चीज क्या करेंगी? दोनों ही चीज आपके एक्सपेंडिचर साइड को बढ़ा देंगी. और टैक्स कट हो रहे हैं तो मतलब आपका रेवेन्यू साइड कम हो गया है. एक्सपेंशन. सो व्हाट विल दैट मीन? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड, बट इसकी वजह से जो रेवेन्यू है आपका उतना कम नहीं हो रहा. तो देन अगेन यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट. सो यू हैड हाई फिस्कल डेफिसिट ड्यूरिंग दिस टाइम, बट हम लोग सब्सिडीज पर अपना एक्सपेंडिचर नहीं कम कर पा रहे थे. सो इसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट और वाइड हो गया. एंड धीरे धीरे कि अगर क्राइसिस सिचुएशन आ रही है तो अब उसकी वजह से देयर इज अ रिसेशन फियर ऑल्सो.
तो अगर आप, ऑल्दो आपको फिस्कल कंसोलिडेशन करना है तो आपको अपना फिस्कल डेफिसिट कम करना चाहिए, बट आप फिर भी एक्सपेंडिचर करते हो ताकि डिमांड स्टिमुलेट हो सके। तो देयर वाज अ डिलेड विड्रॉल ऑफ द स्टिमुलस दैट वाज गिवन, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स वर आल्सो गेटिंग क्राउडेड आउट। ठीक है। एंड कैड, करंट अकाउंट डेफिसिट, was also increasing. It went beyond 3% of GDP ड्यूरिंग 2012 एंड 13 पीरियड। अब इसका मेजर रीजन क्या था कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों इतना बढ़ रहा था? तो स्टार्टिंग में जो आपके एक्सपोर्ट बूस्ट हो रहे थे, बिकॉज देयर वाज वेरी हाई ग्लोबल डिमांड, दैट रिड्यूस, ग्लोबल डिमांड कम हो गई, सो ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन हुआ। ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स स्लो हो गए। अब धीरे धीरे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जब हाई होती है, विच वॉज द केस ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, तो पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर इन गोल्ड, जिसकी वजह से गोल्ड इंपोर्ट्स बढ़ गए। तो अब एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं और आपका गोल्ड इंपोर्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है, ऊपर से यू ऑल्सो हैव हाई ऑयल इंपोर्ट्स गोइंग ऑन। तो जिसकी वजह से ओवरऑल व्हाट हैपेंड, आर डेफिसिट इन द करंट अकाउंट that started going up when your imports are more and people are importing more gold as well because of high inflation, because उसको एक safe asset माना जाता है, so things started going worse। एंड आपका जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो 2009 से 11 के पीरियड के बीच में अप्रिशिएट हुआ। और जब भी एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होता है तो आपके एक्सपोर्ट्स के लिए बुरी बात होती है। ठीक है। तो उसकी वजह से भी कैड काफी बढ़ गया। तो दीज वर सम ऑफ द रीजंस व्हाई कैड स्टार्टेड गोइंग अप। एंड उसके अलावा अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, सॉरी नॉट इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, that also started declining. So manufacturing slowed down during this period, 2012 to 2018. Industrial growth was about 3 to 4% as compared to 6 to 6.5% earlier. आपका एक कॉन्सेप्ट होता है IIP, विच इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो आपको बताता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो IIP के डेटा के हिसाब से आपका जो प्रोडक्शन था वो कम था, लेकिन जो जीडीपी बेस्ड ग्रोथ होती है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री वो ज्यादा शो कर रही थी। IIP बेस्ड डेटा जो था वो अलग ग्रोथ रेट शो कर रहा था। सो दिस वाज शोइंग लेसर इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट एज कंपेयर टू दी GDP रिपोर्टेड ग्रोथ। जीडीपी में जो इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही थी, दैट वाज रिलेटिवली हायर एज कंपेयर टू द ग्रोथ दैट वी सॉ अकॉर्डिंग टू IIP। तो मतलब थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे डेटा में भी डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज लोअर देन व्हाट वर द ऑफिशियली रिपोर्टेड फिगर्स। सो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन में या पॉलिसी प्रिस्क्राइब करने में या एनालाइज करने में अगर डेटा में डिस्क्रिपेंसी है तो दैट आल्सो बिकम्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज when the question comes, which are the numbers that you will believe? But IIP based industrial growth rates were relatively lower as compared to what were the official figures that were quoted। ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें थी। तो इस पूरे पीरियड के दौरान इन्वेस्टमेंट भी लो थी, डिमांड की वजह से भी मैन्युफैक्चरिंग काफी इम्पैक्ट हुई। ये सब फैक्टर्स हमें देखने को मिले ड्यूरिंग दिस डिसेलरेशन। तो अगर ब्रॉड वे में हमें एनालाइज करना है कि 2003 से 2008 का जो पीरियड था, इट वाज अ हाई ग्रोथ पीरियड ड्यू टू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड फिस्कल डिसिप्लिन। एंड ऑन द अदर हैंड इफ वी सी दिस पर्टिकुलर पीरियड पोस्ट दैट, उसमें हमें क्या देखने को मिला? We saw slowdown due to inflation, high fiscal deficit, and also we saw weak industrial growth.
तो अब ये सारे फैक्टर्स देख के कुछ चीजें हैं जो एज पॉलिसी लेसन्स हम लोग समझ सकते हैं। तो पहले तो देखो, आपको अपनी फिस्कल पॉलिसी को प्रूडेंट रखना पड़ेगा, उसको स्टेबलाइज करके रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा फिस्कल स्टिमुलस नहीं दे सकते, बिकॉज उसकी वजह से क्या होगा, डेफिसिट बढ़ जाएगा, तो आपको फिर बोरोइंग करनी पड़ेगी। तो आपको एक्सेसिव सब्सिडीज को रिड्यूस करना पड़ेगा, एंड आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए, जिससे आपकी कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़े। सो प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी हैज टू बी मेंटेन्ड। उसके अलावा यू हैव टू स्टेबलाइज द इन्फ्लेशन, बिकॉज हाई इन्फ्लेशन फियर्स की वजह से ही गोल्ड इंपोर्ट्स इंक्रीज, जिसकी वजह से आपका कैड बढ़ गया। सो स्टेबल इन्फ्लेशन मेंटेन करना आपकी एक प्रायोरिटी है, एंड मॉनेटरी मैनेजमेंट। और आपको इंटरेस्ट रेट्स को भी स्टेबलाइज करना है, बिकॉज उससे इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट होती है। And you also have to keep the MSP in line with inflation, because otherwise you might be creating a fear of cost push inflation. अगर MSP growth ज्यादा है, so then there is a fear of cost push inflation. उसके अलावा you have to continuously invest in infrastructure, रोड इन्वेस्टमेंट, रेलवे इन्वेस्टमेंट, ये सब आपको चीजें करनी पड़ेंगी। उसके अलावा आपको जो आपका एक्सटर्नल सेक्टर है उसको मैनेज करना पड़ेगा। यू हैव टू मेंटेन कंट्रोल योर कैड, क्योंकि कैड अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है, आपके एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से यू शुड एनकरेज एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, मतलब बहुत अलग अलग चीजों में एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए, और इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना चाहिए। एक्सटर्नल सेक्टर मैनेजमेंट, ठीक है। उसके अलावा आपको इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव करना पड़ेगा, बिकॉज वो काफी बड़ा बूस्ट भी देता है, काफी बड़ा सेक्टर है, इन ऑर्डर टू गिव मोर एंड मोर जॉब्स ऑल्सो। सो एंड प्लस आपके डेटा में डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। ऑल द डेटा शुड बी कंसिस्टेंट, डेटा दैट आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज शुड रिवील अ सिमिलर पिक्चर, अदरवाइज यू विल हैव ट्रबल इन प्रिस्क्राइबिंग एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिसी। तो डेटा को लेके तो एटलीस्ट आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल, ठीक है। So these are some of the policy lessons that can be taken by analyzing the two periods that we saw. Policy lessons. Now, what is the way forward? कि अब हम फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से क्या देखें, कि हमें किस किस चीज पे फोकस करना पड़ेगा। दैट इज समथिंग दैट वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड एंड डिस्कस। तो हमने अपने 2003 से लेके 2000 लेट से 18 तक के पीरियड को इन डेप्थ एनालाइज किया, कि इसकी ग्रोथ और स्लो डाउन के पोटेंशियल रीजंस क्या हैं। हमने एक ओवरऑल स्नैपशॉट देखा कि इंडिया करंटली किस सिचुएशन में है, वहां पे जीडीपी पर कैपिटा कितना है, हम लोग कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमें कंसिस्टेंटली ग्रोथ रेट को कितना रखना पड़ेगा अगर हमें एक प्रॉस्परस कंट्री बनना है। तो अब हमारे फ्यूचर गोल्स के बारे में बात होगी, कि किस किस सेक्टर को किस तरीके से प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ताकि वी कैन थिंक अबाउट अ new new India, or an India with better and improved levels of poverty and inequality, and the things are stable. So that is something that we would like to discuss in the next part. So this is first part of the discussion, wherein we saw what really happened so far. अब इसके आगे के गोल्स को किस तरीके से अलाइन किया जाना चाहिए वो हम लोग डिस्कस करेंगे. That will be the agenda for next session. Okay, thank you so much.